तो बाद में वो बात की जाएगी, लेकिन आए हुए Marathi movies, and our Marathi movies are doing really good. I might be good experienced in a Kannada industry and all. I've done a good movies in Kannada, like 100 Days and all. My last movies and all are gone. But it's my dream coming into like a big ocean. Okay. It's a big ocean in a Bollywood, they say. I'm doing I got an opportunity, so I'm going to utilize it, and in a bigger way I want to go do forward. But mostly it happens that people from the Hindi industry go to the south, and not much people from the south come to the Hindi industry. So is this something very different? Yeah, it might be different, but the thing, sir, for an actor, wherever he goes, he have to act, sir. Right. That's it. And it's an opportunity, I think so. So I can speak languages also. I don't have any issue with I can speak 8 languages. Mala Marathi pon yete, Tamil yete, Telugu yete, Kannada yete. So I don't have any issues with the language. So that's reason it's all our industry, sir. At least it's a Indian languages. So I can do all the movies. I feel so. So what different did you find in the South industry and the Hindi industry as such? So nothing different, anything. I'm going to act there also. I'm going to act here also. But doing really great. That's my debut movies and all I have done over there. It's my first movies and all it's come there. It's always been my Kannada industry, I can say. But Bollywood is something big. So people can recognize me in a bigger way. And I'll get more opportunities, I think so. So I'm going to do that one. But the status of a South industry is like a god. Be it Rajinikanth, be it Nagarjun. It doesn't happen in Hindi industry. They praise people, but they didn't, praise like a god. Sir, I can say that Rajinikanth also have done Kannada movies, and I've met him personally, and also I know about him. He have done all the languages. I acted in all the languages. He's a big superstar. The people say him a god. But I'm also getting a good opportunity. My Murli sir and my producer is giving a good opportunity for me in this movie to act and all. So I'm doing my best in this movie. I can give my 100%. I'm not 100%. I can try giving 100% for this movie. What are the projects you're working after this project? I have around like 2 Tamil movies, 2 Kannada movies, and a few Hindi movies. I got offers already. So I'm looking forward for them and all. I'm listening to the stories and all. So they're in a flows. Thank you, sir. सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत प्राउड की बात है कि कनाडा के सुपरस्टार आपकी फिल्म में काम कर रहे हैं. कितना चैलेंज था उनको अप्रोच करना, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कितने प्राउड मोमेंट है आपके लिए? चैलेंज तो था ही किसी को एक स्क्रिप्ट सुना के तैयार करना, क्योंकि उनकी भी पहली फिल्म में डिब्यूट होती है, तो वो भी सोचते हैं कि किस डायरेक्टर के साथ काम करूँ नहीं करूँ. मेरे लिए तो चैलेंज था ही. तो मैंने सबसे पहले उनको जब मैंने फ़ोन किया और स्क्रिप्ट में जब मैंने नरेट की तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. बाद में फिर दूसरी बार उन्होंने सुना, तीसरी बार सुना, एक एक सीन को उन्होंने सुना प्रॉपर. फिर जब कहीं लाके लगा कि यार ये स्क्रिप्ट मुझे फिट हो रही है, जैसे कि मेरी आंखों से वो फिट थे सब. मतलब गैंगवार फिल्म में एक्चुअली गैंगवार नहीं है, मगर एक लोग क्या करते हैं कि किसी के हाथ से अगर कोई खून होता है, वो छूट के आता है जमानत पे, तो वो उसको ये नज़र देखते हैं कि भाई है, इससे लोग डरो. मगर उसके ऐसा कुछ उसके दिल में ऐसा कोई है नहीं, और वो सीधा साधा, मगर लोग उसे आखिर गैंगवार में मतलब वो गुंडा मान के चलते हैं. तो आखिर में अंत ये हो जाता है कि उसका एनकाउंटर होता है. और सुनील जी को मैंने स्क्रिप्ट सुनाई और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी दिखाई सब्जेक्ट में, और खुश हैं मुझे लग रहा है. आगे देखो. सर बहुत खुश हूँ आपके स्क्रिप्ट से सर. एंड he had done a really good dialogues and good he narrated me very nicely subject everything, and the situation makes the person get into a rowdyism and all.
he never become a rowdy intentionally. The situation make him that he is a well-educated person who want to live his normal life in like a normal life he want to live. But the thing, when he narrated the story, I really liked it, and I told definitely shall we work together. I told you. And how did he guide and mentor you during the shoot of the film? कैसे guide किया, कैसे mentor किया when he was shooting for the film? Actually, sir, when he approached me, we knew from a long time. When he approached me, I was really feeling happy that he is such an experienced person and he had done a really good job. So after listening the subject, I really felt nice, and I have to do so. And it's my debut, and I have to come up in something this kind of a subject, like. It might be like a shootout, Lokhandwala and all. I used to like these movies and all. And this is a big opportunity that I'm working in this kind of dream project where I can do my better job. So I was fitting into that character also. So I really felt happy by doing this, and I told him yes for this Now movie. as an actor, sir, you are coming into Bollywood. So who is your inspiration as an actor? Sir, there are many inspiration for me, but I've been in love with like Salman Khan sir. I really like him. I've been a big fan of him from my childhood, to tell you the truth. So you can see this one also. I like him only. I'm a big fan of Salman Khan sir. Right. So tomorrow is his birthday and Tiger Zinda is going on. So have you seen the film or how much are you excited? Sir, actually this time I couldn't. I used to watch his first movie every time, first day, first show only. This time I was busy in a shooting, so I couldn't go for a movie. So, but I definitely going to watch his movie in a theater in a bigger way, and I'm a big fan, sir, to tell you the truth. Thank you. And I'm going to wish him. Yeah, please. Salman Khan sir, if you are seeing this one, I'm a big fan of you, and I really take my inspiration from your side, and I wish you happy birthday. God bless you. Keep rocking always. We all are supporters for you. We all are with you. Thank you. Single किरदार को नहीं देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा, मैं तो बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, स्टेज काफ़ी करता हूँ, लेकिन हमारे डायरेक्टर मुरली सर ने ये बहुत बड़ा मौका दिया है इस गैंग फिल्म का। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है ये, और इसमें मेरी बहुत अलग भूमिका है। जो मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करते आया हूँ, लेकिन इसमें जो भाईगिरी है, जो हमारे सुनील भाई है, जो हमारे हीरो है, तो मैं इनका सपोर्टर हूँ। और माइंड ब्लोइंग इनके साथ में जो भी कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो उसको मैं निस्तरता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है, किसको डालना है, किसको क्या धमकी देना है, क्या करना है। तो ये जो चैलेंजिंग कैरेक्टर है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो मैं तो चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं अभी कुछ बताऊँगा नहीं उसके बारे में, शायद इसको मुझे पर्दे भी अच्छा देखने के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि सुनील भाई बहुत हमारे बड़े अच्छा एक्टर है, बड़े साउथ से, कन्नड़ा में काफ़ी उन्होंने नाम है उनका, उनके साथ में भी मुझे काम करने का मौका मिला है। और मैं वाकई में सब आप मीडिया वाले हैं, सभी की आपकी दुआ है, आशीर्वाद है, तो हम साथ में बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये चैलेंजिंग रोल को मैं चैलेंज के साथ में लिया हूँ और ज़रूर इसको पूरा करूँगा अच्छी तरह से। थैंक यू। Yes, sir. What really made you to be part of the Yes, sir. So what really inspired you to become an actor? What was the first time when you thought that yes, I have to be? Yeah, sir. Basically, I'm from a modeling industry. I have done like 130 shows all over India, and I'm a brand ambassador for Raymond's, Rough and Tough, many brands, everything. I don't have any background support and all. I'm from a very poor family. I take off like I've done like modeling, and after that I got an opportunity. I become a supermodels. One by one, I started to get the movies, everything. So I've done a good in the movies, Kannada industry right now. I don't have any Godfather kind of stuff, anything. I came on my hard work. And one more thing I like to share with you people that I worked in a petrol bunk as a cleaner. Very hardly I had come because I lost my dad and all in a very early stage. And when I was in the 6th standard, I lost my dad. After that, it was like a poor family. We are like, I have 2 sisters and one younger, myself a brother for them and my mom. That's it, we live. And after that, after 10th standard, I did my evening college. I started to work in a petrol bunk as a cleaner. I did my education in that way. After that, I joined the modeling and all. Then I started to do movies one by one. I started to get the opportunities in the Kannada industry. Then after that, I'm into Bollywood now. So. The first person who supported you in the industry, the Kannada industry, who was the first person who supported There is a by name Santosh. He is the one who saw me in when I was working out in a gym. He asked me whether you were a model or something. So he introduced me to Rajesh Shetty. He is a designer in Bangalore, famous designer. So he gave me a break in a modeling. After that, I started to get the shows and all. In a ladies' night shows and all, I started to get a good names, everything.
I did lots of shows in that way. So my name started to flow everywhere. So I started to get the opportunities. Then Veena Bhatt, one day she saw me in paper article somewhere, and director saw that, who do you know this guy and all. That was the first break for me in a Kannada movie as a negative character. I played as a Vidyarthi movie, that is. I am the first villain I acted in that movie. After that I started to get the positive roles and all. And down the spot, what is the craze of Hindi film industry, Bollywood? Are you really inspired by Bollywood? Sir, Bollywood is bigger than the South industry. Sir, this is a very difficult question you are asking me, by the way. The thing is, all the industries are big, sir. But the exposure wise, our Bollywood is a big, as exposure wise. But I never give up to my Kannada industry also, who's given me break in a first industry, like given me acting, everything. So in a Kannada industry, yeah, this is like Bollywood is like a ocean, sir, big ocean, where we have to struggle a lot, but still, but we will get a good opportunities over here. And if one movie get hits and all, your name, everything automatically you know about that one. So I should not answer you for this one and all. But Bollywood is a big, sir, at last. It's my dream. I wanted to act in Bollywood from my childhood. I want to become like one of a star in Bollywood. And it's a challenging role in whatever I'm doing now, sir. Even the TV industry is very big over here. So what do you have to say about it? If you can just work in the Oh, sorry, sir. Sorry. What was the TV question? industry also very big. Yeah, television industry is also big. I got already offers from a big. I don't want to mention which is a production house and all, but I got an opportunity has already to act in a series. But as I told, I'm doing a movies in a Kannada industry and all. I doesn't do serials. They told me I'm giving an opportunity in movies also. I'm working out with the big banners and all right now. I got a good offers, which in many. I can't say the name and all right now. I can't review the name and all, but it's a big. And as an actor, are you fulfilling your social responsibility? As an are you associated with any NGOs or any? Yeah, I'm doing already. There is a NGO called in my Nippani. I'm doing one NGO for AIDS people, AIDS kids and all. I'm just doing for them and all. I'm going to start up. I'm working on that one. But in another 1.5 months, I'm going to do that one, sir. Thank you. तो हम तो फर्स्ट है मेरे दोस्त के हिसाब से हम लोग आए हैं सर या ना तुम्हें डायरेक्टर सर ने स्टोरी बताई थी इनको बताई सेट हो गया तो स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए हम लोग। सर प्रकाश जी को मैंने ये सब्जेक्ट सुनाया था, उन्हें भी बहुत इम्प्रेस हुए। फिर इस तरह आगे कहानी बढ़ी तो उन्हें लगा कि हाँ ये फिल्म हमें करनी चाहिए। फिर मैंने जब कहा, आपको बताया कि मैंने हीरो को अप्रोच किया, सब्जेक्ट सुनाया, इस तरह गाड़ी एक डब्बे जुड़ते गए और अभी बहुत डब्बे जुड़ने बाकी हैं। क्या हुआ था, पहली बार हम जब ये मेरे दोस्त थे, मेरा भाई है पहले, प्रोड्यूसर बाद में बने हैं, लेकिन क्या है मेरे दोस्त थे, ये बेल्लारी में रहते। मैंने जस्ट मिलने के लिए बुलाया था। जब स्टोरी सुने तो उन्हें बोले मैं ही प्रोड्यूसर बन जाता हूँ इस मूवी के लिए। सो आई वाज वेरी हैप्पी विथ एंड ही ट्रस्ट अस। तो वो लोग ट्रस्ट करते हैं इसलिए वो आगे आए एज अ प्रोड्यूसर। सो वी आर डूइंग अ तो मूवी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखा जाता है कि साउथ इंडस्ट्री में ज़्यादातर साउथ के लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री में हिंदी नॉर्थ के। ये मराठी फिल्म होके भी साउथ के स्टार काम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है? ये क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफरेंस लाएगा ये आगे चल के? और ये नहीं, एक सॉरी बात काटूंगा, आपको बता दूं कि ये मराठी नहीं और ये बायलैंग्वेज है। ओके। ये मराठी और हिंदी में भी कर रहे हैं और इसके लिए हम ऐसे कलाकारों को ले रहे हैं जो ऑलरेडी मराठी और हिंदी दोनों में फेमस है। जैसे आप जैसे गणेश जी को देखा होगा, इस तरह कई और कलाकार आएंगे जो जिन्हें मराठी में भी लोग जानते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जानते हैं। अब ये माइंड सेट मतलब लैंग्वेज जो होता है वो बैरियर नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं ना आप कि मतलब कोई लैंग्वेज अगर साउथ की फिल्म में मान लीजिए हिंदी इंडस्ट्री के लोग भी काम करें, उसके बारे में क्या करना चाहिए? क्रिएटिविटी में कोई फ्रीडम होना चाहिए, फुल फ्रीडम होना चाहिए? नहीं सर, ये देखा जाए तो वैसा एक्टर के लिए सब एक्टिंग ही है सर। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी है, वही बोल रहा हूँ सर। मेरे दोस्त मेरे प्रोड्यूसर हो क्या है तो बात कीजिए सर। तुम्हीच बोला क्या नाही हे तर मला पहिल्यांदाच आहे, त्यासाठी मी जास्ती काय बोलू शकत नाही। आता काय बोलायचं ते यंदाच बोलू दे। ये इंडस्ट्री में नहीं है, तो इनको उतना बात करने और थोड़ा शर्माते भी हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो आदत है बात करके, सो वी कैन जस्ट टेल यू आंसर्स एवरीथिंग। या इट्स actors are actors sir, wherever they get opportunity they have to go sir, I can say that's it. चलो अभी बस हो गया। अभी जीतू गोस्वामी है और मेरे कैरेक्टर का नाम मनिया है और मुरली जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हमने एक्चुअली साथ में काम किया था एक ट्रैवल शो के लिए, तो तब से कुछ था कि नहीं कुछ अच्छा करते, कुछ बढ़िया करते, तो आज वो मौका मिला है और अच्छा है, अच्छी टीम है। गणेश यादव जी हैं, सुनील हैं। गणेश यादव जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और ये दूसरा मौका होगा। जस्ट अभी हम लोग मिले तो हम लोग दूसरे को वही बोले कि यार सेकेंड फिल्म करेंगे साथ में, तो खुशी है, एंजॉय कर रहे हैं इस मौके को
और आप लोगों का साथ मिलेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। सर आपसे कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे कि जूनियर प्रोजेक्ट से और कितने प्राउड फील कर रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार इस प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टुडे। मुरली जी के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ, बिंगरी नाम है उसका। अब मे बी विद इन 4-5 मंथ रिलीज़ होगा वो, और ये सेकंड फिल्म उनके साथ मैं कर रहा हूँ, द गैंग। और बॉलीवुड फिल्म में बागी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहाँ से डेब्यू किया है टाइगर श्रॉफ के साथ। बस अब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिल्म जल्दी बन जाए और सुपर डुपर हिट हो जाए। तो जानना चाहूँगा कि कितना चैलेंज था इस रोल को प्ले करना है, थोड़ा सा चैलेंज प्लेइंग द रोल। अभी देखिए, अभी शूट अभी शुरू होगी, लेकिन हम लोग की तैयारी अभी भी शुरू है। अच्छा, वही कैरेक्टर को देखकर हम लोग जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आर्या का कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है और केदार जो है उनका कैरेक्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी रीडिंग शुरू है। हम लोग वही पढ़ते हुए सोच रहे हैं कि कौन किस तरह से वो उस कैरेक्टर को लेके जाएगा। हाँ, लेकिन इतनी बात पक्का है, जब फिल्म रिलीज़ होगी तब हर एक कैरेक्टर आपको अलग दिखेगा। आप बताइए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये रोल प्ले करना जो आप रोल प्ले कर रहे हैं। चैलेंज हर एक एक्टर के लिए एक कोई भी कैरेक्टर निभाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे हम लोगों ने सत्या देखा है, वास्तव देखा है, तो ऐसी सब फिल्में देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें फिल्म के अंदर क्या करना है, कि जैसे दर्शकों को क्या चाहिए, वो क्या देखना चाहते हैं इस फिल्म से। तो बेशक हम अपना 100% देंगे, और ये हमारे साथ टैलेंटेड एक्टर्स हैं, इनके साथ हम अच्छा काम करके अच्छी फिल्म बनाएंगे। गैंग का नाम सुनते ही आपके सामने आता है गैंग, एक यंग लड़के, फ्रस्ट्रेटेड यूथ। और जैसे मेरे अपने में हमने देखा था कि 4 नौजवान लड़के होते हैं और जो सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है, मतलब हर एक एक्चुअली यूथ जो है वो आज के दौर में उनका हर फ्रस्ट्रेशन, एंगर जो है वो किस हिसाब से बाहर निकालते हैं। और इसी ये गैंग को एक हमेशा एक आदमी है जो क्रॉस होते रहता है, जो है एक इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, हीरो है। और मुझे इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही है। जैसे ईरान में आप देखते हैं कि छोटी छोटी फिल्में बनते हैं अबाउट रिलेशनशिप, तो मराठी फिल्म का या मराठी फिल्म में काम करने का यही फ़ायदा है कि काफ़ी सारी इनोवेटिव सब्जेक्ट्स, नए नए आइडियाज़ के साथ फिल्में बन रही है। और लोग भी काफ़ी उत्सुक है, जैसे अभी अजय देवगन भी एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है। तो अच्छा है कि अगर ये हिंदी कमर्शियल एक्टर्स मराठी की फिल्म्स को सपोर्ट करेंगे तो मराठी फिल्मों का और नाम हो जाएगा। जैसे कि अभी ईफी में भी देखा हमने कि इस बार 9 मराठी फिल्में वहाँ पे थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है, अच्छा लगता है कि मैं मराठी एक्टर हूँ और मराठी फिल्मों में काम करता हूँ। तो हिंदुस्तान में हर तरह की फिल्म बनती है, हर लैंग्वेज की फिल्म बनती है, लेकिन फिर भी वो जो बॉलीवुड का जो क्रेज़ होता है कोई कलाकार को, वो बहुत मतलब इंस्पायर करता है कि बॉलीवुड का हिस्सा बनना है। वो कहाँ तक आप व्यावहारिक मानते हैं कलाकार के तौर पर? नहीं, मतलब कोई भी एक्टर काम करता है तो इसके लिए करता है कि लोग उसे पहचाने, लोग उसे जाने, उसके साथ फ़ोटो निकाले। हर एक्टर की वही ख्वाहिश होती है। और जब आप हिंदी में काम करते हो तो बहुत बड़ा मार्केट है, वो आपको पूरे वर्ल्ड में आपको रिकग्निशन मिलता है। तो वो तो है ही, हिंदी फिल्मों में काम करने का अलग मज़ा है, अलग मज़ा भी है, पैसे भी अलग से मिलते हैं और सब अच्छा ही है मतलब हिंदी फिल्मों का। बस उनको थोड़ी अच्छी फिल्मों के बारे में भी मुझे लगता है कि और अच्छी फिल्में बननी चाहिए। और कोशिश भी वो लोग हिंदी इंडस्ट्री भी की चल रही है, काफ़ी सारी अलग तरह की फिल्में बन रही है। तो अच्छा माहौल है एक्चुअली एक फिल्म्स के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी एक फिल्म आ रही है मेरी स्वाभिमान नाम की, जिसके दिग्दर्शक है रोहित आर्य, नए डायरेक्टर हैं और हिंदी फिल्म है वो। छोटी सी फिल्म है और पर अलग तरह का सब्जेक्ट है फिल्म का, आरक्षण पर फिल्म बेस है। और एक फिल्म है मराठी बेधड़क, जो बॉक्सिंग के ऊपर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर संतोष मांजरेकर है। तो ये दोनों फिल्में अभी प्रोसेस में हैं, वो जल्दी रिलीज़ होने वाली हैं।
रहे हैं तो जी फीलिंग है फीलिंग क्या, हालत ही ख़राब रहती है हमारी। तो वो हर हफ्ते हमारे लिए एक फ़िल्म की तरह होता है कि टीआरपी आई तो आई, ठीक नहीं आई तो फिर एक फ्लॉप मारते हैं, फिर 2 हिट मार देते हैं, फिर एक फ्लॉप मारते, ऐसे चलता रहता है। लेकिन वो इंडस्ट्री का वो सिस्टम है वैसा, तो क्या करें। बट यू हैव मेक अ बिग नेम इन टेलीविजन इंडस्ट्री, क्या करना चाहेंगे? आर यू सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ? नहीं, मैं अभी चाहता हूँ अभी जैसे बोल बच्चन और एंटरटेनमेंट जैसी 2-3 बड़ी फिल्में की मैंने, तो अभी कोई 1-2 बड़ी फिल्में और करूँ मैं। 2018 में शायद रोहित सर के साथ ही वापस चांस मिल जाए तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, कोई बड़ी फिल्म करना चाहता हूँ। क्योंकि शोज़ तो हमने इतने सारे कर लिए, चलाए भी, 1-2 ऊपर नीचे भी हुए, लेकिन काफ़ी चलाए हमने, पूरा डेकेड निकाल लिया, 11-12 साल। तो अभी हम चाहते हैं कि एक और कोई ऐसा कोई अलग शो लाएं, क्योंकि अभी हम लोग भी सेम चीज़ कर करके हम लोग भी बोर हो चुके हैं। हम भी चाहते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हम लोग। तो ये कहना चाहूँगा कि कॉमेडी शो होस्ट करना और फिल्म स्टार बनना, दोनों में क्या अलग टैलेंट कोशेंट होता है? कोई आजकल अलग नहीं, सब आजकल सारे फिल्म वाले टीवी पर हैं, टीवी वाले फिल्मों में हीरो बन रहे हैं, एक से एक फिल्में आई जा रही हैं, सुशांत की हो, किसी की भी हो, तो डिफरेंस कोई नहीं है। लेकिन कृष्णा ये कहना चाहूँगा, कपिल ने टेलीविजन पे इतना बड़ा नाम किया लेकिन फिल्मों में वो नहीं चल पा रहे, तो उसके बारे में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चल नहीं कैसे, वो एक पिक्चर बस प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से उसकी कोई फिल्म आ जाएगी, वो फिर हिट मार देगा। ऊपर नीचे तो चलता रहता है, और टैलेंटेड तो है कपिल, और टैलेंट्स के साथ साथ ब्रेनी भी बहुत हैं, तो हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे गलतियाँ, बड़े बड़े लोगों की फिल्म नहीं चलती, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है या चला नहीं, लेकिन मुझे लगता है वापस आ जाएगा कोई अच्छी फिल्म लेके। लेकिन आप इतना सक्सेसफुल होकर भी बहुत हम्बल हैं, काफ़ी मतलब सुकून में रहते हैं, क्योंकि घर में फैमिली ऐसी है ना, गोविंदा जी को हमने बचपन से देखा हुआ है, तो हमने खुद के टेलीविज़न के स्टारडम के साथ क्या बोलते हैं, उनका एक बड़े स्टार का अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत देखे हैं, तो हमें पता है कि हम्बल और प्यार से काम करने से ही सब सही रहता है। जहाँ आपने थोड़ी सी अकड़ दिखाई, वहाँ पर लोग ही, अगर लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, जैसे मीडिया ने भी कर दिया, तो आदमी फिर घर बैठ जाता है, अच्छे बैठ जाता है। इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये गैंग, ये फिल्म मैं बिल्कुल मैं मुहूर्त के लिए आया हूँ, और इसके जो डायरेक्टर है मुरली जी, उनके साथ मैं एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, जिसके अभी हम लोग गाने वाने कर आए थे, लेकिन बहुत कमाल की बात है वो ख़त्म नहीं हुई और इन्होंने दूसरी शुरू कर दी तो मैं गुड लक देने के लिए आया हूँ पूरी टीम को, क्योंकि मुरली जी को बहुत सालों से जानता हूँ मैं। जब स्ट्रगल टाइम पे जब काम नहीं होता था तो इन्होंने मुझे 1-2-3 काम दिलाए, तो वो बोलते हैं ना, वो रिलेशनशिप बहुत पुराना है मेरा, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो आज ये फिल्म कर रहे हैं तो मैं इसीलिए आया स्पेशली उनके लिए। सलमान का जन्मदिन भी आने वाला है। हाँ, मैं जाऊँगा, अभी पार्टी होगी उनके आज रात को, तो वही तैयारी है, हर साल मैं जाता हूँ, तो इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उनके साथ तो मैं इतना, इस साल मैं बिग बॉस नहीं कर पाया उनके साथ, क्योंकि मैं कलर्स पे नहीं था, मैं सोनी पे हूँ, तो नहीं तो मैं हर साल बिग बॉस जाता था, तो इस बार मिस कर गया। लेकिन सलमान भाई को तो वी लव हिम, और टाइगर जिंदा भी बहुत कमाल जा रही है, सुपर हिट हो गई है, तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज वो सुपर स्टार तो हैं ही, लेकिन इंसान, ही इज़ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड हम सभी उनको बहुत प्यार करते हैं। या हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कृष्णा और सलमान भाई, वी लव यू, आई लव यू, वी का बाकी दुनिया तो करती है, आई लव यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ, हेलो, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आम देना भाई, जो आए ऊपर रोल करो, पर्दा गिरा जरा, टाइम निकलता जा रहा, आप लेट आए थे सब, चलो गिराओ, चलो सब रेडी, चलो पर्दा गिराओ। R.V. Patil Film presents the Murat shot of the film The Gang. मेरे हाथों से बाब्या मारा गया, बाब्याचा खून उन्होंने जाणून नाही केला। बाब्या का खून महज एक ॲक्सिडेंट। लोकांना असे वाटते की सुन्याने आपली गँग बनवण्यासाठी बाब्याला मारलं, गँग बनता नाही, आप लोग बनाते हैं।
कड़क। सर आइए ना, सर आइए ना। सुनील सर, सुनील सर, सर आइए ना, बीच में आइए सर, सर बीच में आइए, सर ठीक है। सर लुक, अभी पूछा, अरे बहुत देर कर ली। कैसा था सुनील सर यहाँ पर? सर ये बीच में आए, हाँ चलो ठीक है। कितना बचा है? फोड़ो आगे, एक और फोड़ो, सब आगे। या प्रवीण जी, ये जरी मरी कुरला में ना हो। हो गया डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देने के लिए आया हूँ। मुरली जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हम लोग साथ में एक फिल्म भी कर रहे हैं, मराठी फिल्म जिसका नाम बिगड़ी। हाँ, वो स्केड्यूल के बाद में बातें हैं, एक का प्रॉब्लम है तो अच्छा है। मुरली जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और टीम भी बहुत अच्छी है। तो मैं पोस्टर देख के बहुत खुश था। मैं हमारे सब हीरो लोग और सबको बोल रहा था कि पोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। रमेश भी इस फिल्म में मेरे दोस्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक और फिल्म कर रहे हैं साथ में। तो मैंने बोला यार गुड विशेष देने के लिए मुझे आना ही था। और वैसे भी सिंधी लोग बहुत कमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो रमेश को रानी हो, पैदा के रानी या शीला की जवानी, लेकिन मोती लाल भाई भी कमाल करेंगे। गुड लक। गणेश जी का दोन शब्द बोलते हैं। गँगच्या आज मुहूर्त आहे गँगचा आणि सर्वच टीमचं अभिनंदन, निर्मात्यांचं अभिनंदन की गँगच्या निमित्ताने प्रोडक्शन सुरू करतात। सुनीलला त्याच्या करिअरसाठी शुभेच्छा। बाकी आमच्या जितू वगैरे मित्र आहेत, मुरलीजीबरोबर काम करायला मजा येईल अशी अपेक्षा आहे। सो ऑल द बेस्ट, थँक्यू। First of all, everyone, hi. Thanks all for coming, sir, and supporting us. I'm coming from Bollywood. People support me too. I've already done a ton of movies, as you know everyone. I've done around 10 movies. Bollywood is my debut. Thanks a lot for supporting. And all the rest of my producers, sir, and actors, sir. I've given me opportunity to support. Thanks a lot, everyone. Thank you. रिक्वेस्ट करता है कि एक सेल्फी, एक फोटो ऐसा लाइन से आओ, फिर कोई जाना है सेंटर को बोले घरी जाए, कुछ नहीं बाहर खाना लगा है, सब लोग खाना है, लाइन से भीड़ मत करो। कृष्ण जी